Operation Extraction. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewad Chowk. الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا کارنامہ حیدرآباد کی سب سے بڑی ڈیری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس بھینس کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور مسقط ڈیری، جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کے علاوہ فلیورڈ ملک کا جواب نہیں، اب پبلک کے بے حد اصرار پر پیش کر رہے ہیں ٹیٹرا پیک دودھ جو 4 مہینے تک رکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئس کریم کے ڈھیر سارے ورائٹیز جو بچوں کے من کو بھائیں، بچے تو بچے بڑے بھی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، مسقط ڈیری کے گن گا رہے ہیں۔ روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے آرڈر پر بھی دستیاب ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف مسقط ڈیری، کوٹلے عالیجہ، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں سکھیا تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں BCN اردو نیوز۔ BCN اردو نیوز کے تمام سٹاف کی جانب سے ناظرین کو سال نو کی پرخلوص مبارکباد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی سرخیاں۔ سال نو کے موقع پر صدر جمہوریہ ہند وزیر اعظم اور سونیا گاندھی کی عوام کو پرخلوص مبارکباد۔ ریاست بھر میں عوام نے جوش و خروش کے ساتھ کیا 2013 کو الوداع اور سن 2014 کا شاندار استقبال۔ سال 2012 کے مقابلے سال 2013 میں جرائم کے فیصد میں اضافہ، انتہا پسند سرگرمیوں میں کمی، DGP بی پرساد راؤ کی میڈیا کانفرنس۔ چوری تھرمنگ پولیس صنعتی نمائش کا ریاستی وزیر پونالا لکشمیا کے ہاتھوں شاندار افتتاح، 2500 اسٹالز کا خیال۔ اور اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، UPA صدر نشین سونیا گاندھی نے سال نو کے موقع پر عوام کو سال نو کی پرخلوص مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے نئے سال کے اپنے پیام میں تمنائیں کی ہیں کہ نیا سال تشدد اور مسائل کو ختم کرتے ہوئے امن کا خوشگوار ماحول پیدا کرے۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے کہا کہ نئے سال کے پرمسرت موقع پر اندرون و بیرون ملک اپنے تمام ہم وطنوں کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ نیا سال ہمارے معاشرے میں شعور بیدار کرے، جس کے ذریعے علم کو سماجی بھلائی اور معاشی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کرے کہ ہمارے نوجوانوں کی اختراعی صلاحیتوں میں اضافہ ہو۔ آئیے ہم عہد کریں گے کہ نئے سال میں ملک کی عوام اپنی متنوع صلاحیتوں کو ہمگیر ترقی کے اجتماعی مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ نیا سال امن و مساوات اور خیر سگالی لائے۔ سال 2014 کی آمد کے موقع پر دونوں شہروں کی عوام نے جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا۔ پولیس نے وسیع تر بندوبست کرتے ہوئے ٹریفک تحدیدات عائد کرتے ہوئے تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد نوجوان لومینی پارک آف نیکلس روڈ کے قریب آتش بازی کے ذریعے نئے سال کی خوشیاں منائی۔ سڑکوں پر موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی گئی۔
दोनों शहरों के होटल्स क्लब्स में रक्स व सुरूर की महफिलें मुनक्किद की गई थी। गिरजाघरों में भी ईसाइयों की कसीर तादाद ने साल नौ के मौके पर खुसूसी दुआया इज्तिमात में शिरकत की। ट्रैफिक पुलिस ने नए साल के जश्न के मौके पर हादसा की रोकथाम के लिए जगह जगह चेक पोस्ट कायम करते हुए मोटरसाइकिल सवारों को ब्रेनेट एनालाइजर्स की मदद से हालत नशे में होने का पता चलाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अनुराग शर्मा ने तेलुगु तल्ली फ्लाई ओवर के करीब केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अमित गर्ग, जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच मल्ला रेड्डी व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। साल 2014 की आमद दोनों शहरों के अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। नए साल के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद बेकरी मालिकी ने केक के स्टॉल्स कायम किए थे, जबकि अवाम ने अपने मकानात की छतों पर म्यूजिकल आलात लगाते हुए रक्स किया और साल नौ का जश्न मनाया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने साल नौ के मौके पर दोनों शहरों में सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए थे और नीम फौजी दस्तों को भी शहर की अहम सड़कों पर मुतय्यन कर दिया गया था। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासती आवाम को नए साल के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रियासत के आवाम के साथ साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम तेलुगु आवाम को पुरअमन और खुशहाल सालिनों की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपने बयान में उम्मीद जाहिर की है कि साल नौ 2014 रियासत की आवाम के लिए अमन और खुशहाली लाएगा। नए साल के मौके पर गवर्नर रिवायती तौर पर मुबारकबादी के तबादले के लिए राजभवन के दरबार हाल में 1 जनवरी को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अवाम और कायदीन के लिए मौजूद थे और मुबारकबाद वसूल की। तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने पुलिवेंदुला फैसले के सिलसिले में YSR कायदीन से सवाल किया है कि वो इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करें। नारा चंद्रबाबू नायडू ने GHMC की जानिब से मुनहदिम की गई इमारतों का जायजा लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में कई बदगुमानियां सरजद हुई हैं। उन्होंने कहा कि YSR को सियासी पार्टी रहने का हक भी हासिल नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में खुले मुबाहिसे के लिए चैलेंज किया। नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में हुकूमत से या नहीं, क्योंकि हुकूमत अवामी मसाइल के हल की जिम्मेदारी हुकूमत होती है, जिसमें बरसर इक़्तिदार हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న ఒక పార్టీ పెట్టిన వ్యక్తులు, మీరు రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తామని చెప్పే వ్యక్తులు, ఈ రోజు ఎవరు ఈ యొక్క రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి మీ ముద్దుల మామ, జగన్మోహన్ రెడ్డికి ముద్దుల మామైన, వాళ్ళ తండ్రికి బావమరిది విజయలక్ష్మి గారు బైబిల్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు, నేను దేశాన్నే బాగు చేస్తానని మీ తమ్ముడు సమాధానం చెప్పండి. అంటే ఈరోజు బరి తెగించి మీ ఇష్ట ప్రకారం చేస్తే ఎంతమంది పోరాడగలుగుతారని అడుగుతున్నా. పులివెందుల్లో జరిగే మాఫియా గ్యాంగులు ఇవే చేస్తారు. రాజశేఖర రెడ్డి ప్రారంభించింది, జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రోత్సహించేది, వాళ్ళ కుటుంబం బతికేది ఇలాంటి నీతిమాలిన చర్యలతో, అవినీతి డబ్బులతో సిగ్గు లేకుండా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. साल नौ के मौके पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर न सिर्फ ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी, बल्कि वसी तक पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। उन्होंने अवाम से खास तौर पर नौजवानों को नए साल की मुबारकबाद पेश की और इजहार तशक्कुर किया कि पुरअमन माहौल में अवाम ने नया साल मनाया है। इस मौके पर कमिश्नर अनुराग शर्मा ने न्यू ईयर केक काटा और अपने स्टाफ के साथ खुशियां मनाई। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ సిటీలో న్యూ ఇయర్ ఈవ్ నడుస్తున్నది. అన్ని చోట్ల ప్రోగ్రామ్స్ పార్టీలు నడుస్తున్నాయి. అండ్ జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్, ఇప్పుడు కొన్ని మినిట్స్ తర్వాత, నిమిషాల తర్వాతనే 2014 వచ్చేస్తుంది. ఆన్ మై బిహాఫ్ తర్వాత మా మొత్తం సిటీ పోలీస్ సిబ్బంది తరఫు నుంచి అందరి ప్రేక్షకులకి, మీ అందరికీ నూతన్ వర్ష శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగలేదు. ఎక్కడైనా అంతా ప్రశాంతంగానే ఉన్నది. చిన్న
యాక్సిడెంట్ తప్ప మిగిలిన ఎక్కడైనా ఏం జరగలే. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఆల్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ ఆన్ జాబ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us are also here. All the best. Happy New Year. Thank you. Thank you, sir. रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासिलात पुन्नाला लक्ष्मैया के हाथों 21 जनवरी को 74वीं कुल हिंद सनती नुमाइश सन 2014 का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। इस बात की इत्तला 21 जनवरी रियासती वजीर पंचायत राज व सदर नुमाइश सोसाइटी के जाना रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए दी। उन्होंने कहा कि नुमाइश सोसाइटी और उसकी करीबी तंजीम उस्मानिया ग्रेजुएशन एसोसिएशन के नुमाइंदे गुज़िश्ता 70 साल से तालीम के फ़रोग़ के लिए खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी को कुल हिंद सनती नुमाइश से जो फंड हासिल होता है उस फंड से 18 तालीमी इदारे बिलखुसूस लड़कियों की तालीम के लिए तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा नुमाइश में तकरीबन 2500 स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिनमें रियासती व मरकजी हुकूमत के महकमे जात, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कारपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉल्स शामिल हैं। उनमें हैदराबाद मेट्रो रेल, RBI, SBH, आंध्रा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व दीगर इदारे काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कहा कि कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। महकमे पुलिस के अमले के अलावा 200 वॉलंटियर्स और फायर सर्विसेज के अरकान को भी मुतय्यन किया जा रहा है। नुमाइश सोसाइटी ने रियासत की तकसीम का असर 46 रोज़ा प्रोग्राम पर पड़ सकता है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि चौकस रहने का फैसला किया है ताकि अवाम में एतमाद बहाल रखा जा सके। नुमाइश सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी अश्विन मार्गन ने बताया कि 25 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा तारीकी में काम करने वाले कैमरों की तनसीब भी अमल में लाई गई है। ये कैमरे 24 घंटे नुमाइश ग्राउंड पर नजर रखेंगे। हुक्काम ने डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स भी नस्ब किए हैं ताकि अशरार पर नजर रखी जा सके। बाबुत दाखिलों पर 15 डोर फ्रेम मेटल डिक्टेटर्स नस्ब किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी जवानों के हाथों में 25 दस्ती डिक्टेटर्स होंगे। डॉग स्क्वाड को भी तैयार रखा जाएगा। इस मरतबा नुमाइश में चंद नई चीजें देखने को मिलेंगी, जिनमें हैदराबाद मेट्रो रेल का एक मॉडल कोच भी शामिल है। अजंता गेट के रूबरू मेट्रो रेल का एक स्टेशन तामीर किया जाएगा। 2 प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनके दरमियान एक मेट्रो रेल कोच खड़ा किया जाएगा ताकि अवाम को हकीकी मेट्रो का तासुर पेश किया जा सके। मेट्रो रेल के स्टॉल से प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात बशमूल LBDTL और मुख्तलिफ रूट्स की तफसीलात हासिल की जा सकेंगी। दाखिला फीस तमाम दिनों के दौरान बच्चों और बड़ों के लिए 20 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त दाखिला रहेगा। नुमाइश सोसाइटी ने 7 जनवरी को खवातीन और 31 जनवरी को बच्चों का दिन यानी कि यौम अतफाल मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता 73वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के जरिए नुमाइश सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। उम्मीद है कि इस साल भी आमदनी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने एक सवाल पर बताया कि नुमाइश सोसाइटी ने रियासती वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया को नुमाइश के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया है। रियासत भर में नवंबर 2013 के इख्तिताम तक जराइम की तादाद 1,88,340 तक पहुंच गई थी, जबकि सन 2012 में ये तादाद 1,68,340 थी, जिसकी शरह तनासुब 12.94% रही। 31 दिसंबर को मुनाफिशुद्दीन मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए DGP B प्रसाद राव ने तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सन 2013 में खवातीन पर हुए मजालिम के वाक़यात की तादाद 25,998 तक पहुंच गई थी, जबकि सन 2012 में 22,585 थी, जिसकी मजमूई शरह फीसद 15.11 रही है। जबकि सन 2012 में इस्मत रेजी के वाक़यात की तादाद 1,191 थी, जबकि सन 2013 में 1,435 तक पहुंच चुकी है, जिसका तनासुब 20.49% रहा। खवातीन के साथ 10 दराजी के वाक़यात की तादाद सन 2012 में 3,821 वाक़यात की तादाद से बढ़कर 5,624 तक पहुंच चुकी है, जिसका तनासुब 47.19% रहा। उन्होंने कहा कि जारिया साल अगवा जिसमें खवातीन भी शामिल हैं की तादाद साल गुज़िश्ता के मुकाबले 1,020 वाक़यात से बढ़कर 1,203 यानी कि 17.94% तक पहुंच चुकी है।
जारिया साल निर्भय एक्ट के तहत जुमला 1016 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि खवातीन पर मजालिम के वाकयात में वो बिना झिझक पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवा रही हैं। चुनाचे हुकूमत को रियासत में मजीद 131 विमेन पुलिस स्टेशन कायम करने की तजवीज़ पेश की गई है, जिसकी मौजूदा तादाद 32 है। डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस ने बताया कि जारिया साल तेलंगाना की तारीद और मुत्तहिदा आंध्रा की बरकरारी के लिए एजिटेशन के दौरान पुलिस गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए हालात से निपटने में कामयाब रही। पुलिस की ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया गया। इस दौरान 466 मुकदमा दर्ज करते हुए 1225 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जहां तक रियासत में इंतहा पसंद सरगर्मियों का सवाल है, इस साल इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में कमी वाक़ई हुई है। इस साल जुमला 163 इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया गया और 76 ने खुशपुर्दगी अख्तियार की। सड़क हादसा से मुताल्लिक भी प्रसाद राव ने बताया कि जारिया साल सड़क हादसा की तादाद में 645 का इजाफा हुआ है, जबकि सन 2012 में ये तादाद 40,384 रही है। सैबराबाद में सबसे ज्यादा सड़क हादसा पेश आए हैं, जिनकी तादाद 3,335 रही। इस साल खत्म नवंबर तक ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुमला 123.75 करोड़ रुपए के चालानात किए गए। महकमे पुलिस में मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक डीजीपी ने बताया कि हुकूमत ने 9,815 पुलिस कांस्टेबल्स की मखलूआ जायदादों पर भर्ती की मंजूरी दी है, जिनमें 877 टेक्निकल जायदादें भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जारिया साल डायल 100 डीजी कमांड और कंट्रोल सेंटर के क़याम के बेहतर नताइज बरामद हुए। क़याम के बाद पहले 6 माह में जुमला 12 मिलियन फोन कॉल्स वसूल हुए, जिनमें निस्फ मिलियन इमरजेंसी कॉल्स पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि इस साल साइबर जराइम की तादाद में भी इजाफा हुआ है। साल गुज़िश्ता ये तादाद 490 थी, जो कि 608 तक पहुंच चुकी है। माशी जराइम की तादाद में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफा हुआ। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने बताया कि जिले महबूब नगर बस हादसे में जब्बार ट्रैवल्स के मालिक और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये पूछे जाने पर के वाल्वो बस की असल मालिक जेसी दिवाकर रेड्डी कांग्रेस कायद के भाई प्रभाकर रेड्डी की बीवी हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। डीजीपी ने बताया कि उस वाक़े की तहकीकात जारी है। రోడ్ల మీదకి వచ్చేసి ధర్నాలు చేయటం, తర్వాత పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇళ్ల దగ్గర ధర్నాలు చేయటం, రోడ్ బ్లాకింగ్ అట్లాంటి చేయటం, రాస్తారోకోలు చేయటం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేపట్టారు. ఎక్కడైతే వైలెన్స్కి పాల్పడతారో అక్కడ దాన్ని అడ్డుకోవటమే కాకుండా స్పెసిఫిక్ కేసెస్ బుక్ చేసి ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం కూడా జరిగిందనమాట. సో ఈ రకంగా మనందరూ తెలుసు 2009 నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఈ యాజిటేషన్ వివిధ పరిణామాలతో ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. ఏదేమైనా కానీ నాన్ లీగల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ యాజిటేషన్ అనే పద్ధతిలో రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థ టాప్ టు బాటం డీజీపీ స్థాయి నుంచి ఆఫీషియల్స్, జిల్లాలో ఎస్పీస్ నుంచి కానిస్టేబుల్, హోంగార్డ్స్ వరకు కూడాను వారు పైనుంచి ఇచ్చిన సూచనల్ని అర్థం చేసుకొని ఒక పద్ధతిలో సమన్వయంతో పనిచేయటం వల్ల పోలీస్ యాక్షన్ వల్ల ఎవరు చనిపోవటం జరగకపోవటం అనేది ఒక ప్రత్యేకతగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ అంశాన్నే ఈ మధ్య జరిగిన డీజీపీస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఢిల్లీలో కూడాను దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న విధి విధానాల గురించి వాళ్ళందరికీ తెలియజేయటం, ప్రజెంటేషన్ ద్వారా తెలియజేయటం జరిగిందనమాట. ప్రస్తుతానికి రాష్ట్రం మొత్తం మీద సుమారు 95 కంపెనీల పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఉన్నది. వాటితో పాటు 30 దాకా ఏపీఎస్పీ కంపెనీస్ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి మేము డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది.
కేసెస్ గురించి చెప్పాలంటే 2013లో మొత్తం ఈ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించి 466 కేసులు బుక్ చేయటం, సుమారు 1225 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మన అక్టోబర్ నెలలో కోస్టలాంధ్రాలో వరుసగా 3 తుఫాన్లు బారిన కోస్టలాంధ్ర పడింది. దానివలన ముఖ్యంగా ఫెయిలిన్ అనే సూపర్ సైక్లోన్ వలన కేవలం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా పంట నష్టం జరిగింది, కానీ ప్రాణ నష్టం అనేది చాలా తక్కువ, అంటే ఒకళ్ళిద్దరు చనిపోవటం జరిగింది. సో దీంట్లో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషను వారికి పోలీస్ సిబ్బంది మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వడంతో ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో, ముంపుకు గురయ్యే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళని ఖాళీ చేయించడంలో, ప్రజలను ఖాళీ చేయించడంలో పోలీస్ సిబ్బంది ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర వహించి జన నష్టం మినిమైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. దాంట్లో కృతజ్ఞులయ్యారని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. ఫెయిలిన్ తర్వాత హెలెన్ తర్వాత లెహర్ కూడా వచ్చాయి. వాటన్నిటిలో కూడాను కేవలం కొద్దిగా పంట నష్టం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మన రాష్ట్రంలో పక్కా హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక గొప్ప వెల్ఫేర్ పథకం వల్ల కూడాను భవనాలు, అంటే ఇల్లు కూలిపోవటం వలన జరిగిన నష్టం కూడాను చాలా మినిమం చెప్పాలి. తర్వాత ఈ సందర్భంగా నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, NDRF అంటారు, వాళ్ళు మంచి పాత్రని పోషించారు. తర్వాత స్టేట్లో ఆ లైన్స్లో, NDRF లైన్స్లో మనం కూడా ఫోర్స్ని డెవలప్ చేయాలి. ముఖ్యంగా తుఫాన్ బారిన పడే కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు టు స్టార్ట్ విత్ 250 మందితో ఏపీ స్టేట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. నేను అనుకోవటం ఒక 6 monthsలో అది. नाज़रीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames, extraordinary services, doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कट डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले ले के खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। BCN उर्दू न्यूज में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है।
रियासत में साल नौ के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद हुई। अवाम ने गर्मजोशी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया, लेकिन चंद मकामात पर जल्दबाजी, तेज रफ्तार ड्राइविंग और जोश में की गई छोटी सी गलती ने उन नौजवानों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कई नौजवान जख्मी हालत में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के साथ साथ तेज रफ्तार ड्राइविंग के लिए भी सख्त पाबंदी आयद की गई थी। तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया ट्रस्ट भवन में मुनक़िद शुदी साल नौ तकरीब में केक काटकर न सिर्फ पार्टी कायदीन व कारकुनान बल्कि अवाम को भी पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थे। जीएचएमसी बल्दिया कमिश्नर सोमेश कुमार ने चंद्रायन गुट्टा कम्युनिटी हॉल में जीएचएमसी स्वीपर्स में मिठाइयाँ तकसीम की और साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप वो लोग हैं जो साफ सफाई के इंतजाम करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे तो आइंदा आप सबको भी तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर चंद्रायन गुट्टा कारपोरेटर अब्दुल खबी अंसारी, वार्ड कमेटी मेंबर के नाबराजू, मुजम्मिल कुरैशी, सत्ती रेड्डी, मोहम्मद अजीजुर रहमान व दिगर मौजूद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक मेयर और मौजूदा कारपोरेटर मीर जुल्फिकार अली ने साल नौ के मौके पर खिलवत कम्युनिटी हॉल में जीएचएमसी सैनिटरी मुलाजिमीन में मिठाइयाँ तकसीम की और उन्हें साल नौ की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जीएचएमसी मुलाजिमीन के अलावा दिगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सरोनगर मंडल के शाहीन नगर के मुख्तलिफ इलाके जात उस्मान नगर, सादत नगर बशमुल 4 ग्राम पंचायतों में एक भी उर्दू मीडियम स्कूल मौजूद नहीं है। मुकामी अवाम, खास तौर पर खवातीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनके इस मसले को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन इलाके जात में तकरीबन 70,000 से ज़ायद अक़लियती राय दहिंदगान मौजूद हैं। मुकामी अवाम ने हुकूमत, वज़ीर तालीम और मुकामी रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी से अपील की है कि वो इस इलाके में सरकारी स्कूल का क़याम करें ताकि यहाँ के बच्चे भी आला तालीम हासिल कर पाएँ। उन्होंने कहा कि इस इलाके में ज़्यादातर गरीब अफराद मुक़ीम हैं जो कि अपने बच्चों को खानगी मदारिस में तालीम नहीं दिलवा सकते, इसीलिए ये अपील की जा रही है। मिट्टूगुड़म इलाके में एक ऐसा बरक़ी पोल मौजूद है जो कि टेढ़ा हो चुका है। किसी भी वक्त उस पोल की जद में कोई भी आ सकता है। मुकामी खातून सारा, जिनके मकान के पास ही ये बरक़ी पोल मौजूद है, जो कि गुज़िश्ता 30 साल से यहाँ पर मुक़ीम है, उन्होंने कहा कि बार बार इस सिलसिले में महकमे बरक़ी के अहदेदारों से शिकायत की गई लेकिन ना हासिल रहा। उन्होंने मीडिया के जरिए अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें और किसी हादसे के होने से कबल एहतियाती इक़दाम की जाएं, वरना हो सकता है कि माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का भी अंदाजा हो। खंबे को रात में 11 साढ़े 11 बजे कोई मार के चले गए और वो बेंड होकर एनी टाइम और बहुत बड़ा स्पार्क निकला कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक। आवाज़ भी बहुत जोर से हुआ और मैं शाम में यूजली अलोन इन द हाउस अकेली रहती हूँ और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और वो लोग आते अगर 1 महीने से कंप्लेन करके कोई आया नहीं अब तक देखने के लिए। और आते हाँ करते बोलते कोई नहीं आता। और एक बार ये है ना पीछे जो भी सर्वेंट के पास वो बिजली वाला बिल भी टाइम से कंप्लेन कितने बार कंप्लेन करी ला के 2-3 महीने तक बिल ला के देता नहीं और दे दिया बोलता। और वो औरत इतनी गरीब है, काम मेरे पास करती और 6 महीने का बिल नहीं बन सकती एक वक्त में। कई वक्त बोलने के बावजूद नहीं आ रहा जीएचएमसी का। बहुत तकलीफ है मुझे इस चीज। BCN उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा अहम खबरों पर एक नजर। साल नौ के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद वजीर आजम और सोनिया गांधी की अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद। रियासत भर में अवाम ने जोश और खरोश के साथ किया 2013 को अलविदा और सन 2014 का शानदार इस्तकबाल।
साल 2012 के मुकाबले साल 2013 में जराइम के फीसद में इजाफा, इंतहा पसंद सरगर्मियों में कमी, डीजीपी बी प्रसाद राव की मीडिया कॉन्फ्रेंस। चौहत्तरवीं कुल्ली सनदी नुमाइश का रियासती वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया के हाथों शानदार इफ्तिताह, 2500 स्टॉल्स का ख्याल। और अब देखते हैं खबरों की तफसील। इसी के साथ ही BCN उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Audio Jungle. The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames, extraordinary services, doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कट डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले ले के खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।